सो क्योंकि ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है वो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। ग्लाइकोजन का जो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना, तो कुछ लोगों का लेफ्ट हो गया, तो वो दोबारा रिज्वाइन कर लें। सो ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द ग्लाइकोजन इज मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। Through the breakdown of glycogen during the initial stages of fast, the maintenance of blood glucose occurs. So why we are studying the regulation of glycogen metabolism? Because of importance of maintaining blood glucose levels. The synthesis and degradation of glycogen storage is tightly regulated in liver. Where it is regulated? It is regulated in liver. And which organs are involved in its regulation? This is pancreas and liver. Remember, pancreas is producing insulin and glucagon for the regulation, and liver is the main site where this regulatory process occurs. So, the regulation of glycogen metabolism occur in the following ways: hormonal regulation and allosteric regulation. अपने पास एक कॉपी पेज पेंसिल लेके बैठ जाएं। अभी जब आगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आने लगी है, उसके एक एक सिम्टम के पीछे एक एक बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपके एसक्यूज में आएगा कि ये इसमें ये चीज़ क्यों होती है, तो साथ साथ नोट करते रहें। सो बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, द synthesis and degradation of glycogen metabolism occur where it is occur in the liver. So the regulation of glycogen metabolism occur in the following ways. दो ways होते हैं ग्लाइकोजन के रेगुलेशन के: हार्मोनल रेगुलेशन और allosteric regulation. Hormonal regulation and allosteric regulation. So we'll study this in two headings. Hormonal regulation वो रेगुलेशन होगी जिसमें कोई हार्मोन्स होंगे, जैसे इंसुलिन, जैसे ग्लूकागोन, वो इसको रेगुलेट कर रहे होंगे। और हमारे पास एलोस्टेरिक, जो आपने पढ़ी है एंजाइम की एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है, वो भी हम स्टडी है। सो सी दिस डायग्राम. So pancreas is secreting insulin in case of high blood glucose levels. The insulin stimulates the uptake of glucose by the cells, and then this, in the cells it is ultimately converted to glycogen. When there is low level of blood glucose level drops, the insulin, the pancreas secretes glucagon, and then glucagon moves into the liver to start the glycogenolysis, the breakdown of glycogen, to maintain the blood glucose. So in this way, there is cyclic maintenance of the blood glucose by the synthesis, that is glucogenesis of the glycogenesis, sorry, that is glycogenesis of the glycogenesis, or through the glycogenolysis, that is the synthesis of glycogen or the degradation of glycogen. सो इस तरह ये दोनों मेंटेन हो रहे हैं। तो अभी ये जो है ना, ये इसकी रेगुलेशन भी बड़ी कम्प्लेक्स ही है, इसको गौर से समझें। आपको ये समझ आ गई तो आपको आज का लेक्चर सारा समझ आ गया। अगला सो हार्मोनल रेगुलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस की एक्टिवेशन कब होगी? फास्टिंग में होगी। एज वी नो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू थिंग्स, दैट इन फास्टिंग ग्लूकागॉन इज रिलीज्ड, in fasting glucagon is released, and in well fed state insulin is released. In fasting glucagon is released, and in well fed state insulin is released. So what will be doing glucagon will be doing the degradation of glycogen, that is glycogenolysis. What will be doing glucagon will be doing the degradation of glycogen, that is glycogenolysis, to supply the glucose in case of fast. So activation of glycogen degradation by glucagon. Remember epinephrine. You will study this in endocrinology. It is also a stress hormone. It is also secreted in fasting state. So epinephrine is also causing the degradation of glycogen, that is glycogenolysis. Epinephrine binds to the muscle and liver cells, whereas glucagon bind only to the liver cells. ये कल की जो असाइनमेंट भी थी कि जो हमारे पास है मसल जो है वो क्यों नहीं मेंटेन करते ब्लड ग्लूकोज, बिकॉज दे लैक GLUT2 एज वेल एज दे लैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज भी नहीं होता और GLUT2 भी नहीं होता। तो इसी वजह से किसी ने पूछा था कि जब ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास अल्फा 1 6 बॉन्ड जब टूटती है तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है। वो ग्लूकोज क्यों नहीं मसल से बाहर आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि GLUT2 नहीं होता। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता। सो इस वजह से मसल जो है वो नहीं मेंटेन करते
blood glucose, they utilize glucose for their own energy production. So activation of glycogen degradation by glucagon and epinephrine. So it is mediated through G protein coupled receptor. What are the types of receptor? They are the alpha receptors for glucagon and beta adrenergic receptors for epinephrine. ठीक है, अल्फा फॉर ग्लूकागोन एंड बीटा एनर्जी रिसेप्टर फॉर एपिनेफ्रिन. सो यहाँ देखें अब आप इसको समझने की कोशिश करें. दे आर थ्री एंजाइम्स. पहले तो याद रखें, दे आर थ्री एंजाइम्स इन रिएक्शन. वन इज प्रोटीन काइनेज. मैं जूम कर रहा हूँ, दिस थोड़ी ब्लर है. One is protein kinase, the other is glycogen phosphorylase kinase, the other is glycogen phosphorylase kinase, and the third one is glycogen phosphorylase. So there are three enzymes. The first one is pyruvate kinase A, the other one is glycogen phosphorylase kinase, and the third one is glycogen phosphorylase. So what is doing pyruvate kinase, protein kinase? I'm saying pyruvate नहीं, it's protein kinase. So protein kinase क्या करेगा? Protein kinase गौर से सुने, protein kinase glycogen phosphorylase kinase की phosphorylation करेगा. Glycogen phosphorylase kinase एक एंजाइम है, उसकी phosphorylation करेगा protein kinase A. फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की जब फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, वो जाके फॉस्फोरिलेशन कराएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की. पहला एंजाइम है प्रोटीन काइनेज ए, वो फॉस्फोरिलेशन कराएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की. जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, तो वो फॉस्फोरिलेशन कराएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की. सो आई रिपीट अगेन, दे आर थ्री एंजाइम्स, प्रोटीन काइनेज ए, glycogen phosphorylase kinase, and the glycogen phosphorylase. Second one is glycogen phosphorylase kinase, and the third one is glycogen phosphorylase. तो होता क्या है, जब ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन आगे बाइंड करता है, सो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, तो आगे आपको पता है सिक्लिक एएमपी बनता है. सिक्लिक एएमपी बनता है. ये सिक्लिक एएमपी क्या करेगा? इट विल कॉज द फॉस्फोर इट विल कॉज द एक्टिवेशन सॉरी इट विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए. प्रोटीन काइनेज ये टेट्रामर होता है. ये आपको नजर आ रहे हैं, दो सी हैं, दो आर है. इट इज हैविंग दो कैटालिटिक डोमेन्स एंड टू रेगुलेटरी डोमेन्स. आई रिपीट अगेन, प्रोटीन काइनेज ए is a tetramer protein. It is having two regulatory domain and two catalytic domain. ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है नीचे, इसकी फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए चाहिए होता है हमें कैटालिटिक डोमेन्स. कैटालिटिक डोमेन्स तब तक काम नहीं करती जब तक रेगुलेटरी डोमेन्स इनको छोड़ ना दें. उन्होंने इनको पकड़ के रखा होता है, भाई हमने नहीं तुम्हें काम करने देना. जब तक रेगुलेटरी डोमेन्स ने, या आप यहाँ देख रहे हैं टेट्रामर बना हुआ है, कैटालिटिक डोमेन्स को पकड़ के रखते हैं, ये अपना काम नहीं करती. सिक्लिक एएमपी क्या करता है? रेगुलेटरी डोमेन्स के पास जाके बाइंड करता है. ये आपको रेड रेड डॉट्स नजर आ रहे होंगे. ये देखें, जब इस पे बाइंड किया तो ये रेगुलेटरी डोमेन यहाँ पे, सी माय कर्सर, यहाँ पे ये रेगुलेटरी डोमेन्स जो है वो सेपरेट होगी. और इस पे रेड रेड सा क्या बाइंड है? ये सिक्लिक एएमपी के 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड किए हैं. व्हेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिक्लिक एएमपी आर बाउंड टू द टू domains of the two regulatory domains, they are separated from the remaining two catalytic domain. अब कैटालिटिक डोमेन सेपरेट होगी, ग्लूकागोन आगे बाइंड किया, रेगुलेटरी डोमेन प्रोटीन काइनेज ए की कैटालिटिक डोमेन से सेपरेट होगी. अब ये रेगुलेटरी डोमेन will cause then the phosphorylation of glucagon phosphorylase kinase. ग्लूकागोन फोस्फोराइलेज एक काइनेज एक एंजाइम है जिसको ये फॉस्फोराइलेट कर देते हैं ग्लूकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में. ये देखें पी लगा यहाँ पे. As I have already told you, I repeat it again and again and again that glucagon phosphorylates, insulin dephosphorylates. ग्लूकागोन जहां भी आएगा, वो जितने आगे एंजाइम आएंगे सबको जाके फॉस्फोरिलेट करेगा. कुछ एंजाइम उसकी फॉस्फोरिलेशन से एक्टिव हो जाएंगे, कुछ एंजाइम उसकी फॉस्फोरिलेशन से इनएक्टिव हो जाएंगे. जैसे हमने पढ़ा पाइरुवेट काइनेज इज इनएक्टिवेटेड बाय फॉस्फोरिलेशन. अब हम पढ़ने जाने कुछ ऐसे एंजाइम जो फॉस्फोरिलेशन से एक्टिवेट होंगे. सो कैटालिटिक डोमेन ने क्या किया? कैटालिटिक डोमेन कॉज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज इनटू ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म. इट बिकम्स एक्टिवेटेड. जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी कैटालिटिक डोमेन से, ये एक्टिव हो गया. अब जो एक्टिव फॉर्म होती है ना ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज को,
आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे, इसको छोटा सा ए कहते हैं, इसको कहते हैं ए, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए फॉर इनएक्टिव। फिर जब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज बी, बी इज इनएक्टिव। इसको गौर से समझें, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए जब एक्टिव हो गया बाय द कैटालिटिक डोमेन्स ऑफ द प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए दैट इज एक्टिव फॉर्म। जब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में, दैट इज ग्लाइकोजन काइनेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज बी। अब यहाँ पे देखें इसकी डीफॉस्फोरिलेशन कौन करेगा, इंसुलिन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्लूकागॉन फॉस्फोरिलेट्स, इंसुलिन डीफॉस्फोरिलेट्स। अब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए ने क्या किया, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की फॉस्फोरिलेशन कराई। as the name shows, glycogen phosphorylase kinase, glycogen phosphorylase kinase A ने क्या किया, glycogen phosphorylase की phosphorylation कराई, and it caused it conversion in the conversion of glycogen phosphorylase B into glycogen phosphorylase A। फिर इसने क्या किया, glycogen phosphorylase B की conversion कर दी glycogen phosphorylase A में। So B is again inactive and A is active। I repeat again these steps कि प्रोटीन जो काइनेज ए जब सिक्लिक एमपी इसके साथ आगे बाइंड किया, इसकी रेगुलेटरी डोमेन्स ने इसकी कैटालिटिक डोमेन्स को छोड़ दिया। जब जब रेगुलेटरी कैटालिटिक डोमेन सेपरेट होगी, जो कैटालिटिक डोमेन्स थी वो आके उन्होंने फॉस्फोरिलेशन कराई ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज बी की, जो इनएक्टिव फॉर्म में था। जब उसकी फॉस्फोरिलेशन होगी तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए ने क्या किया, उसने किया ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी दैट इज इनएक्टिव, उसकी कन्वर्जन करवा दी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ए में थ्रू फॉस्फोरिलेशन। फिर आपको पता ही है द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन वाज ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, तो वो ये था। फिर उसने क्या करना है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ने अपना काम करना है आगे और डिग्रेडेशन करनी है। In this way, Allah Ta'ala has made glucagon to break down glycogen। इस तरह ग्लूकागोन आके लिवर के हिपैटोसाइट्स के रिसेप्टर दैट इज जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करता है। सिक्लिक एएमपी सेल के अंदर ज्यादा होता है। जब सिक्लिक एएमपी सेल के अंदर ज्यादा होता है तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है। पूछा जाए वो कैसे एक्टिव होता है, वो इस तरह एक्टिव होता है कि उसकी रेगुलेटरी डोमेन्स कैटालिटिक डोमेन्स को पकड़ के रखती हैं। जब सिक्लिक एएमपी बाइंड कर जाता है रेगुलेटरी डोमेन से तो कैटालिटिक डोमेन्स सेपरेट हो जाती हैं। फिर कैटालिटिक डोमेन्स क्या करती हैं, कैटालिटिक डोमेन्स ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज बी की फॉस्फोरिलेशन करती हैं और उसको एक्टिव करती हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए में। फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए क्या करता है, वो करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी की फॉस्फोरिलेशन करता है और उसको एक्टिव करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ए में और वो अपनी फॉस्फोरिलेशन करता है। एपिनेफ्रिन भी यही काम कर रही है, लेकिन एपिनेफ्रिन की क्या फर्क है, इट इज बाउंड टू बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, glucagon bound to alpha 1 adrenergic receptors, and the receptors of epinephrine are also present on the muscles, whereas the receptors of glucagon are not present on the muscle. Another reason that's why maintenance of blood glucose is not through the muscles. Although epinephrine is present, but the main reason is there is no glucose 6 phosphatase and GLUT2. So in this way, glucagon causes degradation. In this way, glucagon causes degradation of glycogen and the maintenance of ब्लड ग्लूकोज। तो हम भी हमने पढ़ लिया कि हार्मोनल रेगुलेशन में इसमें डायग्राम में कुछ और चीजें लिखी हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। रेगुलेशन so series glucagon or the epinephrine, cyclic AMP increased. Cyclic AMP causes activation of protein kinase A. The protein kinase A then caused the conversion of phosphorylase kinase B to phosphorylase kinase A. That is glycogen phosphorylase kinase. Then the glycogen phosphorylase kinase causes the conversion of glycogen phosphorylase B, that is inactive, to glycogen phosphorylase A. Then glycogen phosphorylase A will causes the degradation of glucagon. Then it will causes the degradation of glucagon. देखिए यहाँ पे एक प्रोटीन फॉस्फेटेज भी है जो एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव में कर रहा है, तो अल्लाह ताला का निजाम है, इसको भी तो रोकना है ना कि हम एक पाथवे चलाना है। तो जो सिक्लिक एएमपी है इट इज आल्सो phosphorylating the inhibitor of protein phosphatase. So when the inhibitor of protein phosphatase is phosphorylated, it becomes activated and it inhibits the protein phosphatase here.
it inhibits the protein phosphatase by causing its phosphorylation. So ये याद रखें, जो भी हमारे पास फास्टिंग में ना, एक हार्ड एंड फास्ट रूल बता रहा हूँ, फास्टिंग में जो भी एंजाइम्स हैं वो डी फॉस्फोर वो फॉस्फोरिलेट होंगे ग्लूकागोन से, और वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जितने भी एंजाइम हैं फास्टिंग में इंसुलिन से, वो डीफॉस्फोरिलेट होंगे और क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ये प्रोटीन फॉस्फेटेज है, ये ग्लूकागोन इसकी फॉस्फोरिलेशन कराएगा और ये भी इनएक्टिव हो जाएगा। ये क्यों इनएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज इट इज डूइंग ऑपोजिट टू द डिग्रेडेशन। ये एंजाइम की जो डिग्रेडेशन को उनको इनएक्टिव कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने निजाम रखा है। तो अगर आपसे पूछ लेंगे कोई एंजाइम्स बताएं जो फॉस्फोरिलेशन से एक्टिव होते हैं, जो फॉस्फोरिलेशन से इनएक्टिव होते हैं, तो फॉस्फोरिलेशन से एक्टिव होते हैं वो कौन से हैं, आप कह सकते हैं वो प्रोटीन काइनेज ए है, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज बी है, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी है, और जो इनएक्टिव होते हैं वो कौन से हैं, दैट इज प्रोटीन फॉस्फेटेज। सो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन हमने पढ़ ली, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस को कौन स्टिमुलेट करेगा, इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा। सो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जब आता है तो हमने पहले ही पढ़ा कि सिक्लिक एएमपी इनहिबिट हो जाता है, इंसुलिन डीफॉस्फोरेट्स, तो प्रोटीन काइनेज ए जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। जो प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट हो जाएगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी की कन्वर्जन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए में कन्वर्ज कम हो जाएगी। जब ये कम होगी तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी की कन्वर्जन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में कम हो जाएगी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा किसी ने। अच्छा, सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी नहीं कन्वर्ट होगी ए में, तो आगे ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब डिग्रेडेशन नहीं होगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सिंथेसिस होगी। जब डिग्रेडेशन नहीं होगी तो क्या होगा, सिंथेसिस होगी। ये वाले डायग्राम देखें, ग्लूकागोन आके बाइंड किया, ग्लूकागोन ने आके वही किया, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव किया, प्रोटीन काइनेज ए की कैटालिटिक डोमेन है, अब ग्लाइकोजन सिंथेज ए दैट इज एक्टिव फॉर्म, उसकी फॉस्फोरिलेशन करा के उसको कर दिया ग्लाइकोजन सिंथेज बी दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। यू सी हियर द ग्लाइकोजन सिंथेज इज इनएक्टिव इन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म। ग्लाइकोजन सिंथेज बी इनएक्टिव होता है फॉस्फोरिलेशन फॉर्म में और एक्टिव होता है इन डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव होता है फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में और इनएक्टिव होता है डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में। सो ग्लाइकोजन सिंथेज बी इज इनएक्टिव, बी हमने कहा था इनएक्टिव के लिए, इट इज फॉस्फोरिलेटेड। सो अल्लाह ताला का निजाम है कि ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन भी करनी है और सिंथेसिस को भी रोकना है। सो ग्लूकागोन जब फॉस्फोरिलेट कर देगा ग्लाइकोजन सिंथेज को तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, जब वो इनएक्टिव हो जाएगा तो सेंसिस नहीं होगी। और इसी इसको एक्टिव कौन करेगा, ये आप एरो के नीचे देख रहे हैं, इसको एक्टिव कौन करेगा, इसको एक्टिव करेगा इंसुलिन। The insulin will causes activation of glycogen synthase B into glycogen synthase A. So insulin will activate. So insulin is activation. So insulin will causes glycogen synthesis and glucagon will causes glycogen degradation. So this is the acha insulin के receptors कौन से होते हैं, as you have already studied in first year biochemical cell signaling, that is tyrosine kinase receptors. What are the receptors of insulin? Insulin के receptors होते हैं tyrosine kinase. So glucagon के कौन से होते हैं, alpha 1 adrenergic receptors, alpha 1 adrenergic receptors। और epinephrine के कौन से होते हैं, that are beta adrenergic receptors। So allosteric regulation कैसे होती है, अब इस डायग्राम को देखें। इन वेल फेड स्टेट glycogenesis, that is synthesis of glycogen, is stimulated as energy levels are high and substrates are available. So allosteric regulation is through different substrates and energy levels। होता क्या है, वेल फेड स्टेट में हमारे पास एनर्जी लेवल्स ज्यादा होते हैं, सबस्ट्रेट्स अवेलेबल होते हैं, तो क्या हमने करनी है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करनी है। तो हमने बताया ग्लाइकोजन सिंथेस बी इज इनएक्टिव फॉर्म, it is allosterically stimulated in both muscle and liver। So you can see here this one, this right side arrow, glucose 1 phosphate is converted into glycogen by glycogen synthase, and the stimulator of this reaction is glucose 6 phosphate, because in well fed state glucose is available, energy is available, so glucose 6 phosphate will be synthesized and then it will stimulate, allosterically stimulate the glycogen synthase to cause the glycogen synthesis। So glycogen synthase B is allosterically stimulated in both muscle and liver. Glycogen phosphorylase allosterically inhibited both muscle and liver.
So you can see here the glucose 6 phosphate at the same time will causes inhibition of glycogen phosphorylase. It will causes inhibition of glycogen phosphorylase. ATP levels will also causes in allosterically inhibition of glycogen phosphorylase. So glycogen की degradation रुक गई welfare state में और synthesis start होगी because energy is available, because substrates are available. Whereas in case of muscle यही होंगे, कुछ चीजें डिफरेंट है. ग्लूकोज डीफॉस्फोरिलेटिव फॉर्म में भी इनहिबिट करती है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इन लिवर ओनली. आई रिपीट अगेन, ग्लूकोज डीफॉस्फोरिलेटिव फॉर्म में भी इनहिबिट करती है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इन लिवर ओनली, और मसल में नहीं करती. मसल में इसके दो स्टिमुलेंट होते हैं, वो होते हैं लो एनर्जी लेवल और कैल्शियम लेवल. ये कैल्शियम लेवल क्या होता है भी पढ़ेंगे. So in well-fed state, we have availability of high energy levels and substrate. The high energy level will stimulate glycogen synthase and will inhibit glycogen phosphorylase. So in fasting state क्या होगा? Glycogenolysis is stimulated and gluconeogenesis inhibited as energy levels are low and substrates are unavailable. So regulation is different in liver and skeletal muscle, as I've already told you. In what is the difference? The difference that in dephosphorated glucose is also inhibiting glycogen phosphorylase in liver only, and it is not inhibiting the glycogen phosphorylate in the muscle. But calcium is and low energy level, that the AMP are stimulating glycogen phosphorylase in the muscle, but they are not stimulating them the glycogen phosphorylase in the liver. So very important, as I already told, allosteric regulation by calcium. It occurs in liver, skeletal muscles, and liver, but it is more important in skeletal muscles. So calcium is released from the muscles in response to epinephrine. In response to epinephrine, as I've already told you, the epinephrine is binding to the beta adrenergic receptors. So calcium is released from muscles from the sarcoplasmic reticulum in response to epinephrine. When four molecules of calcium binds to calmodulin. Calmodulin is a protein, as you already told, studied this. This is present in the muscles. तो ग्लूकोज जो होती है ना, वो लिवर में इन डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म सिंपल ग्लूकोज उसको इनहिबिट करती है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को लिवर में, मसल में नहीं करती. क्यों नहीं करती मसल में? इसलिए नहीं करती क्योंकि ग्लाइकोजन का जो डिग्रेडेशन है मेजरली वो लिवर में हो रही होती है, और ग्लूकोज वैसे भी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती उसके अंदर अल्फा 1,6 बॉन्ड की ब्रेकडाउन से मसल में. अच्छा, तो जो कॉलमोडुलिन होती है, जब इस पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम बाइंड करते हैं, कॉलमोडुलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनता है. यू कैन सी इन द डायग्राम, endoplasmic reticulum से calcium is released from the endoplasmic reticulum in response to epinephrine. The 4 molecules of calcium will bind to the calmodulin to form a calmodulin complex. अब ये जो calmodulin calcium complex है, then it will activate the glycogen phosphorylase. Then it will first activate the glycogen phosphorylase kinase. ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज ए में, जैसे फॉस्फोरिलेशन से कन्वर्ट हो रहा था. ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. इस डायग्राम को ये बॉक्स देखें, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज बी, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल. सो कैल्शियम इज आल्सो एक्टिवेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी एलोस्टेरिकली विदाउट नीड फॉर फॉस्फोरिलेशन. और जो एएमपी है ना, एएमपी जो होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी को डायरेक्ट एक्टिवेट कर देता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ए में विदाउट नीड फॉर फॉस्फोरिलेशन. सो सी कैल्शियम इज एक्टिंग ऑन ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज and activating it without phosphorylation, and AMP is acting on glycogen phosphorylase and activating it without phosphorylation. So ये इसकी allosteric regulation थी through calcium and through AMP. स्टक हो गया, एक सेकेंड. ठीक हो गया. So allosteric regulation, we have studied allosteric regulation. We have studied allosteric regulation of glycogen degradation by calcium. We have studied allosteric degradation of glycogen by AMP. So AMP क्या करेगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन में. और AMP आल्सो एक्टिवेट्स फॉस्फोरुक्टोकाइनेज. आपको पिछला याद हो तो पिछला भी याद करते हैं साथ साथ कि फॉस्फोरुक्टोकाइनेज को भी एक्टिवेट करता है. तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि जब AMP ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन को एक्टिवेट करेगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी. अब फास्टिंग है ना, तो वो ग्लूकोज फटाफट क्या होगा,
ग्लाइकोलिसिस में चली जाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्लाइकोलिसिस में चली जाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सो इन दिस वे बोथ पाथवेज आर स्टिमुलेटेड बाय एएमपी, ताकि पीछे से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रही है फटाफट ग्लाइकोलिसिस में जाए और एनर्जी दे। तो इस वजह से एएमपी जो है वो फॉस्फोरेलेज काइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को भी एक्टिव कर रही है और ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज को भी एक्टिव कर रही है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक एक चीज आपको आनी चाहिए। कॉपी उठा लें, पेन उठा लें, साथ साथ लिखते जाएं, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल बी शोइंग यू द डिफरेंट diagrammatic representation of the patients suffering from different diseases, having hepatomegaly, having splenomegaly, having the different kinds of facial features. So मैं आपको इस अप्रोच से लेके चलूंगा कि आपको सेकेंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, हर साल में जाके जो क्लिनिकल्स हैं ये मदद करेंगे। These clinicals will repeat, I repeat again, these clinicals will repeat, but you will study only the sign and symptoms, not the underlying mechanism in the next years. But you must know, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर आप क्लिनिकल से पढ़ेंगे तो आपको कोई पेशेंट नजर आएगा, फटाफट डायग्नोज कर लेंगे। I will be showing you the macroscopic appearance. I will be showing you the biopsy appearance. I will be showing you the patients in the next few minutes. So, glycogen storage diseases are the group of genetic diseases that are caused by defects of enzymes required for glycogen degradation. जो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के एंजाइम होते हैं उसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है सेल के अंदर और डिग्रेड नहीं हो पाता। सो इट रिजल्ट इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, और मोर रेयरली इट रिजल्ट फ्रॉम एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। हाउ, हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस के एंजाइम से कैसे ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। So this is your assignment question. So group of genetic diseases that are caused by defects of enzymes required for glycogen degradation. अब ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के स्टेप्स के जो एंजाइम्स हैं उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होंगे, तो पिछले स्टेप्स में जो ग्लाइकोजन है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगी। दे रिजल्ट इन आइदर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन दैट हैज abnormal स्ट्रक्चर, अगर कोई ब्रांचिंग से पहले, डी ब्रांचिंग से पहले का एंजाइम है या फिर लास्ट एंजाइम है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि दो कंडीशंस हैं, या वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा या abnormal स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द enzyme that is accumulated. So they result in either the formation of glycogen that has an abnormal structure or in accumulation of excessive amount of normal glycogen in specific tissues as a result of impaired degradation. So glycogen की degradation नहीं होगी तो क्या होगा, लिवर में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और मसल में क्या होगा, मसल वीकनेस होगी, बिकॉज ऑफ नो ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग बाय द ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, देयर विल बी नो टीसीए साइकिल, देयर विल बी नो एटीपी प्रोडक्शन एंड देयर विल नो मसल कंट्रैक्शन। और हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, बिकॉज ऑफ नो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन बाय द लिवर, because of no degradation by the liver, glycogen degradation by the liver, no glucose will move into the blood, and no glucose will move into the blood, there will be hypoglycemia. And जब दोनों चीजों में ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन नहीं हो रही तो ग्लाइकोजन विल स्टार्ट accumulating within the skeletal muscles and it will start accumulating within the liver. So you can see the liver biopsy. This is the liver biopsy. These cells are hepatocytes. You have drawn this in your histology, I think ये ड्रा कर लिया। So you can see आपने वहाँ पे छोटे छोटे हेपेटोसाइट्स बनाए थे, यहाँ इतने बड़े बड़े हेपेटोसाइट्स हैं, और ये you can see they are empty looking। ये आपको फोर्थ या फाइनल ईयर में इतना अच्छे समझ आ जाएगा ना, मतलब कोई समझाएगा नहीं, अभी आप समझ लें। अरे दिस इज इंटरेस्टिंग, यू कैन सी द हेपेटोसाइट्स, यू कैन सी द हेपेटोसाइट्स, यू कैन सी दे आर एम्प्टी, इनके अंदर स्टेन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ग्लाइकोजन डज नॉट टेक स्टेन, ग्लाइकोजन डज नॉट टेक स्टेन, और इनके अंदर ग्लाइकोजन अकुमुलेशन हो गई है। सो हमारे पास कोई बंदा आए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का, ये क्वेश्चन भी आ गए असाइनमेंट में, उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। एक तो चीज हम उसकी लिवर बायोप्सी करा सकते हैं, लिवर बायोप्सी कराएंगे तो हम इसकी स्लाइड बनाएंगे उस सैंपल की, टिश्यू की, तो हम देखेंगे हाँ हेपेटोसाइट्स के अंदर जो है ये हमें एम्प्टी नजर आएंगे, हमें पता लगेगा कोई चीज इसके अंदर अकुमुलेट हो रही है। फिर हम उसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, फिर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे इलेक्ट्रॉन डेंस ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, हम कहेंगे हाँ हाँ ग्लाइकोजन इसमें अकुमुलेट हो रही है, इसके अंदर ये मसला है। फिर हम उसकी जेनेटिक टाइपिंग कराएंगे, जेनेटिक टाइपिंग कराएंगे, कैरियोटाइपिंग कराएंगे, तो हमें पता लगेगा कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है। फिर उस एंजाइम की जो डिजीज होगी हम उसको उस तरह डायग्नोस करेंगे। एक असाइनमेंट का तो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। पहले हम बायोप्सी करवाएंगे, फिर उसकी स्टेनिंग करवाएंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे, और फिर उसकी हम क्या करेंगे,
उसकी एक तो साइन सिम्टम्स भी होंगे बंदे के, और उसकी क्या करेंगे हम, देन उसकी हम बायोप्सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और उसकी जो हम है क्या करेंगे, एंजाइमेटिक जो हमारे पास है कैरियोटाइपिंग, जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे कि कौन सा एंजाइम है किस लेवल के क्रोमोसोम पे डेफिशिएंट है. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द लिवर इज लुकिंग. इट्स लाइक अ हनीकॉम्ब, whitish appearing, so empty cells. So next slides are very interesting, remember. So there, remember, there are 7 types of glycogen storage diseases. There are 7 types of glycogen storage, 8 types of glycogen storage diseases. So this table is from Harper. There are few diseases written in Lipin code, but there जो Lipin code में लिखी हैं वो काफी अच्छी लिखी हुई हैं in the form of box. We will study that. So ये Harper से table है. There are 8 types of glycogen storage diseases, and these 8 clinicals. Your 8 clinicals, इसमें से एक clinical must है. So I repeat again, these 8 diseases, this table is very good. It is summarizing everything, or it is very good. I repeat again, this table is very, very, very good. You cannot misdiagnose your clinical after knowing this table. अगर ये आपको टेबल अच्छा आता है, आई गारंटी यू कि आपका एक क्लिनिकल जो आना है वो 100% ही होगा. और ये टेबल हार्पर में इस तरह नहीं है, ये मैंने कहीं और से लिया है. ऐसा इस तरह नहीं है, थोड़ी सी उसमें डिफरेंसेस हैं, वो बताता हूँ कौन से हैं. सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8. सो टाइप 1 इज कॉल्ड एज वॉन जीरिक डिजीज. सो काफी लोग इसको पढ़ते हैं वॉन गर्की. दिस इज नॉट वॉन गर्की डिजीज. काफी लोग करते हैं तो फिर वो मजाक में बनाते हैं प्रोफेसर वगैरह ना. सो दिस इज नॉट वॉन गर्की डिजीज, दिस इज वॉन जीरिक डिजीज. So type 1 is von Jiric disease. It results from the defective enzyme that is glucose 6 phosphatase. जो लास्ट एंजाइम था ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो जिसकी वजह से डिजीज होती है वॉन जेरिक डिजीज. अब आप लोग पेज पेंसिल उठाएं और जो मैं बताता जा रहा हूँ वो साथ लिखें. अभी थोड़े दिनों पहले अभी आप लोगों का प्रॉफ चाह रहा था, तो मैं एक सेकंड ईयर के लड़के के पास गया. मैंने उससे कहा कि वॉन जेरिक डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है. वो सोचने शुरू हो गया, सोचता रहा सोच. फिर उसके रूममेट से इनका सोचते रहे दोनों सोचते रहे. फिर तीसरा रूममेट उसका बेचारा रेडियम से, मैंने कहा सोचते रहे. कहता है बस हमने तो रट्टा मारा, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इसमें हाइपरयूरेसिमिया होता है, इसमें हाइपरलिपिडीमिया होता है, इसमें कीटोसिस होती है, इसमें लार्ज मेटल लिवर होती है. क्वेश्चन आपसे इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़े ना, आपसे पूछते हैं व्हाट इज द बायोकेमिकल बेसिस, फिर वहां नहीं आ रही होती. तो अभी आपको पता लगे कि आपको इतना मजा आएगा देखना. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है, लिवर और किडनी अफेक्टेड है. कौन से अफेक्टेड है, लिवर और किडनी. द मेजर साइट्स ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, द मेजर साइट्स ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन. सो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि पिछले स्ट्रक्चर तो सारा बन गया होता है, हमने सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को तोड़ना होता है. पिछले सारे स्टेप्स जो होते हैं वो अक्यूमुलेट होने शुरू होते हैं, और इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड ग्लाइकोजन जो है वो इंक्रीज अमाउंट में अक्यूमुलेट होने शुरू होता है. It result in massive enlargement of liver. It result in massive enlargement of liver. क्यों करता है enlargement of liver, अभी बताता हूँ. Failure to thrive. It result in growth retardation. क्यों करता है growth retardation, अभी बताता हूँ आपको. It results in severe hypoglycemia. One thing is mild hypoglycemia, one thing is fasting hypoglycemia, one thing is normal hypoglycemia. It is severe hypoglycemia. It results in ketosis. It results in hyperuricemia, the accumulation of uric acid in the body. It results in hyperlipidemia. It also delays puberty. I repeat again, it delays puberty. अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसकी ना, बच्चे की बॉन्जेरी की. It result in massive enlargement of liver. किसी को समझ आती है कि ये मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिवर क्यों हो रही है? किसी को समझ आती है कि मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिवर क्यों हो रही है इसके अंदर? अच्छा, तो मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिवर इसके अंदर इसलिए हो रही है क्योंकि ग्लाइकोजन एक्युमुलेट हो रहा है लिवर के अंदर. अभी मैंने बताया ग्लाइकोजन एक्युमुलेट होगा, देयर विल बी हिपैटोमेगली, देयर विल बी हिपैटोमेगली. और सेकंड वजह क्या है, हाइपरलिपिडीमिया. हाइपरलिपिडीमिया, वो हाइपरलिपिडीमिया की वजह से फैट्स जो हैं वो लिवर में आएंगे, देयर विल बी हेपेटोमेगली, फैटी लिवर. आप लिपिंग काउंट में भी आता है ना बॉक्स अगला, तो उसमें लिखा फैटी लिवर बिकॉज ऑफ हाइपरलिपिडेमिया. अब सवाल आता है, अब जिसने इसका आंसर दे दी ना, आज 4 मार्क्स असाइनमेंट के हैं, उसके 5 लगेंगे. कि एक होता है इसके अंदर स्वीयर हाइपोग्लाइसीमिया की होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के अंदर.
व्हाई दिस, इट इज स्वीयर हाइपोग्लाइसीमिया, इतना स्ट्रॉन्ग स्वीयर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया की ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में आता है। किसी को अगर पता है तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, अपना हैंड रेस करें। नेट नोट ना खोले ना, क्या अभी ने मोबाइल में खोला, माइक बंद करें, अपने माइक बंद करें, माइक बंद करें। हाँ ये जो है ना, 1 मिनट, ये ये रोल नंबर 30 जो लिखा हुआ है जिसके आगे आयशा फरीद, हाँ ये बताएं क्यों, अगर बताना चाहते हैं तो, नहीं तो मैसेज कर दें अगर नहीं बोलना चाहते तो। एक्चुअली ऐसा होता है ना, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी लास्ट स्टेप यही है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का भी लास्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ही इंक्लूड होता है। तो दोनों प्रोसेसेस से हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। Very good. Yes, you got 5/5. This is very good. This very severe hypoglycemia because मैंने बार बार, मैं जब आ रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस के लास्ट स्टेप पे आया, मैं आपके उसके ग्लाइकोजन के लास्ट स्टेप पे आया, मैं बार बार कह रहा था इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको, इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा। दोनों का ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज था। अब ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन अगर अफेक्टेड हो रही है और तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस से तो ग्लूकोज बाहर आ सकती है ना, लेकिन हमने दोनों के लास्ट सेम है, उसका एंजाइम जो था सेम था, दोनों ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी और ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन का, दोनों का एंजाइम जो है वो लास्ट सेम है। अब दोनों से ग्लूकोज नहीं बाहर आएगी, जो जिस चीजों जिन प्रोसेस से ग्लूकोज बाहर आती है, अब दोनों से नहीं बाहर आएगी, तो देयर विल बी द स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया, देयर विल बी स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया। बाकी जितने भी हम एंजाइम्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर उन एंजाइम्स का कोई ताल्लुक नहीं है ग्लूकोनियोजेनेसिस से। Gluconeogenesis will continue, so there will be mild hypoglycemia, there will be hypoglycemia, but in case of von Gericht disease, इसका क्लिनिकल आता है तो उसमें लिखा होता है स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया। हमारे ना पेपर में क्लिनिकल आया 7-8 लाइनों का था, दिस 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 दिस, और मैंने इस तरह पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसमें, अभी तक मुझे नहीं पता क्लिनिकल क्या था, मैंने उसमें सिर्फ वर्ड पढ़ा स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया। आई हैवंट स्टडीड कि उसके अंदर ग्लाइकोजन एक्युमुलेट हो रहा, अभी तक नहीं मुझे पता। वो मैं आपका टेस्ट बनाऊंगा ना, तब शायद पढ़ लूँ पिछले पेपर में से। तो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा कि बच्चा था, बुढ़ा था, क्या था, क्योंकि जब हम क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं, वी सी द एज, we see the sign and symptoms. So remember, in every biochemical clinical scenario मैं आपको बताऊंगा there is some particular feature, अगर आपको वो मिल जाए ना, आंखें बंद करके, कान बंद करके, हाथ चला के लिख दें वो आंसर, 1000% राइट। वो चीजें नहीं पता लगती क्लास वालों को, बायोकेम वालों को, वो ढूंढते हैं कीटोसिस कहाँ है, हाइपरयूरेसिमिया कहाँ है, हाइपोलिपिडेमिया कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। एक पर्टिकुलर होता है, इसका लिखें स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज बोथ ऑफ द पाथवे, द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, both are affected, both are affected, so there is a result in severe hypoglycemia. The next question, hand raise only, why it result in ketosis? अभी फैटी एसिड वैसे पढ़े नहीं हमने, नहीं पता लगेगा। why it result in ketosis, अगर किसी को पता है तो। एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ। हाँ, हाँ बोल सकती हैं आप। क्योंकि बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, क्योंकि एनर्जी सोर्स हमारे पास ये मेजर है। अगर वो भी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज नहीं जा रहा, उसकी एक्युमुलेशन हो रही है, तो वहां से डेफिशिएंसी की वजह से ये भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। Is fatty acid oxidation producing ketone bodies or it is producing the acetyl coenzyme? Hmm? Yes, you are right to some extent, but इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ड्यू टू द, यस यू आर 70% राइट, बट यू आपने जो है ना उसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म बिहाइंड नहीं बताया। अब सुने गौर से, फॉर द सेंसेस, और मैं आपसे वहां जाके पूछूंगा, फॉर द सेंसेस लिखें, फॉर द सेंसेस ऑफ फैटी एसिड्स। एक बात तो ये मुझे पता लगी है ये जो इसने आंसर दिए है ना, पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, इसकी जब ये डेफिशिएंट होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्युमुलेट, द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल अक्युमुलेट इन द लिवर। ये गौर से सुने, मैं अगली चीज पूछने जा रहा हूँ आपसे। इट विल अक्युमुलेट इन द लिवर, glucose 6 phosphate will accumulate in the liver, it will enter into the HMP shunt pathway। हम पढ़ेंगे HMP shunt pathway, the hexose monophosphate, हमारा कल का टॉपिक वही है, पर परसों का, hexose monophosphate shunt pathway लिखें। G6PD जब G6P जब accumulate होगा ग्लूकोज 6 phosphate, it will enter into the HMP shunt pathway।
it will enter into the HMP shunt pathway. So there will be more senses of NADPH. The end product of HMP shunt pathway, इसका जो बाय प्रोडक्ट बन होता है दैट इज NADPH from the glucose 6-phosphate to enter into HMP shunt pathway, and NADPH will be synthesized. The NADPH will then, as we know that for the synthesis of lipids we require NADPH, for the synthesis of fatty acid we require NADPH. So high NADPH means high fatty acid synthesis, so there will be hyperlipidemia. I repeat again, high NADPH, so there will be high fatty acid synthesis, there will be hyperlipidemia. This glucose 6 phosphate will also enter into the glycolysis. This glucose 6 phosphate will also enter into the glycolysis. I repeat again, this glucose 6 phosphate will also, it will enter into the HMP shunt pathway, it will also enter into the glycolysis. It will enhance the glycolysis. इतनी glycolysis को enhance करेगी, glycolysis चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. कीटोसिस का रीजन अभी नहीं मैंने बताया, अभी हम चाह रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ हाइपरलिपिडीमिया का रीजन बताया कि एचएमपी शंट पाथवे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाएगा, एनएडीपीएच ज्यादा होगा. जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको ज्यादा बेहतर आ जाएगा. बस आप ये रखें, एनएडी लिख लें, एनएडीपीएच ज्यादा होगा, एनएडीपीएच इज इन्वॉल्वड इन द सेंसेस ऑफ लिपिड्स, सो देयर विल बी हाइपरलिपिडीमिया. बिकॉज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया देयर विल बी फैटी लिवर, बिकॉज ऑफ फैटी लिवर देयर विल इलार्जमेंट ऑफ लिवर. अब यहाँ पे वर्ड है मैसिव इनलार्जमेंट. मैसिव इनलार्जमेंट क्योंकि फैट्स में एक्युमुलेट हो रहे हैं, ग्लाइकोजन भी एक्युमुलेट हो ही जा रहा है, तो देयर विल बी मैसिव इनलार्जमेंट, नॉट ओनली इनलार्जमेंट. So there is severe hypoglycemia. अच्छा, तो it will enter into the glycolysis, glucose 6 phosphate glycolysis. Now glycolysis will be enhanced, glycolysis तेज होनी शुरू हो जाएगी. जब भी glycolysis अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो anaerobic glycolysis स्टार्ट हो जाती है. there is a limit to the oxygen utilization. जब anaerobic glycolysis स्टार्ट होगी तो end product क्या होगा, lactic acid होगा. So there will be lactic acidemia. इसमें नहीं लिखा हुआ, अभी आगे आएगा उसमें लिखा. So there will be lactic acidemia. अब जो हमारे पास है लिपिड्स की, जब सेंस और जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो ग्लाइकोलिसिस हमें पता है एनएडीएच बनता है, एनएडीएच बनता है ग्लाइकोलिसिस से. एनएडीएच भी है हमारे पास, फैटी एसिड्स भी हैं. अब फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन बनता है. परेशान नहीं होना अगर समझ नहीं आ रही, बस इसको जितना ऑब्जॉर्व होता करें, हम पढ़ेंगे इसको. जब फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए. ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास आ गया एनएडीएच, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से आगे हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए. दे बोथ आर द प्रिकर्सर टू कीटोन बॉडी सेंसेस, दे बोथ आर द प्रिकर्सर टू कीटोन बॉडी सेंसेस. तो हाइपरलिपिडीमिया, पहले बताएं हाइपरलिपिडीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि एनएडीपीएच ज्यादा हो रहा है. अब हाइपर लिपिड ज्यादा होंगे तो ज्यादा ऑक्सीडेशन उनकी होगी, उनकी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास ज्यादा एसिटाइल को आएगा, और एनएडीएच भी आ रहा है, ग्लाइकोलिसिस भी ज्यादा हुई है. So they both are the precursors of ketones, so they will be the ketosis. So जिसने भी बताया था माशाल्लाह से सही बताया था, 70% के बीटा ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है. So the last thing, अब ये जो बताएगा ना अब देखते हैं ये कौन बताता है. लास्ट थिंग, अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी से हाइपर यूरिसीमिया क्यों हो रहा है, किसी को पता है तो हैंड रेस करे दोबारा, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वजह फर्स्ट है ना ग्लाइकोजन टाइप फर्स्ट डिजीज, ये बहुत पूछी जाती है. क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर के अंदर है हाइपोड्यूसीमिया, तो न्यूक्लिक एसिड तो नहीं पढ़ा होगा भी आप लोगों ने. ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल एंटर इनटू द एचएमपी शंट पाथवे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एचएमपी शंट पाथवे में जाके एनएडीपीएच बनाएगी, उसी के साथ ही जाके बनाएगी राइबुलोज 5 फॉस्फेट, उसी के साथ जाके बनाएगी राइबुलोज 5 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया थोड़ा आपको कम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो सारी हो जाएंगे, समझिए इसको. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल एंटर इनटू द एचएमपी शंट पाथवे. अभी ना इस एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, वो इसलिए नहीं मैं पूछ रहा क्योंकि ना वो मैं टेस्ट में दूंगा, लेकिन बड़ा ऊपर तक आ गया, मेरे थ्रोट तक आ गया कि मैं ये निकालूं बाहर, लेकिन वो स्टोर करके रखा है, वो इंशाल्लाह आपको टेस्ट में नजर आएगा. तो यहाँ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल एंटर इनटू द एचएमपी शंट पाथवे टू फॉर्म द राइबुलोज 5 फॉस्फेट. ये बड़ा पूछते हैं डॉक्टर नक्शा का फेवरेट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी में यूरिक एसिड क्यों एक्युमुलेट होता है. कीटोसिस जो होता है ना, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन की फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बनता है. एसिटाइल कोए आगे जाके ना कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करता है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड्स और द एसिटोएसिटिक एसिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एचएमपी शंट पाथवे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गया, एनएडीपीएच आया, एनएडीपीएच ने क्या किया, हाइपरलिपिडीमिया गया.
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एचएमपी शंट पाथवे में गया, इसने सिंथेसाइज किया राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसने सिंथेसाइज किया राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज द प्रिकर्सर टू द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। राइबोलोज 5 फॉस्फेट आपने पढ़ा नहीं है? राइबोलोज जो राइबोस होता है उसके अंदर प्यूरिन के अंदर रिंग होती है, तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज द प्रिकर्सर ऑफ प्यूरिन सेंसिस। अब जब प्यूरिन्स की सेंसिस ज्यादा हो जाएगी तो उनकी डिग्रेडेशन भी ज्यादा हो जाएगी, सुभान अल्लाह, जब उनकी डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाएगी तो हाइपरयूरिथीमिया होगा। सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर, कि आप एक तो ये ना आप मैसिव एंजाइमल लिवर, मैसिव एंजाइमल लिवर, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की डोसेज और ये इस तरह रटे मार के चले जाएं। अब पेपर में याद आ रहा था कि मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिवर पॉम्पी में थी कि कोरी में थी, फिर याद आ रहा था यार मेकार्डल में है मुझे तो लग रहा है, फिर उधर खराब हो जाता है। सो स्टडी इन दिस वे के आखिरी एंजाइम खराब हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हुई। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद मैसिव एनलार्जमेंट ऑफ लिवर in liver and kidney, so failure to thrive, severe hypoglycemia, ketosis, hyperlactic acidemia, failure to thrive क्यों हुआ? Because the supply नहीं हो रही। severe hypoglycemia तो ब्रेन को नहीं जा रही ना एनर्जी, तो ब्रेन को एनर्जी जाने जा रही तो क्या होगा? ग्रोथ रिटार्डेशन, और प्यूबर्टी डिलेड होगी, डिलेड प्यूबर्टी, because the glucose is converted into fructose by testicular cells, and this is also dependent on anaerobic glycolysis, or it is also dependent on continuous supply of glucose. As I already told you, the testicular cells are and the brain cells are dependent on continuous supply of glucose. So when there is no gluconeogenesis, no glycogenolysis, so the testicular cells will be affected. There will be delayed puberty in males, delayed puberty in males. So आपको पहले डायग्राम दिखा दूं, ये देखें, you can see this child, severe hepatomegaly, and you can see his face, you can see the growth retardation, you see his tummy, that is severe hepatomegaly। ये देखें इसकी चेस्ट देखें और ये देखें टमी, सो इसकी अपीयरेंस देखें, severe hepatomegaly हुई है इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को। और जब हमने इसकी बायोप्सी कराई तो ये देखें इसके अंदर हमें एम्प्टी सेल्स, इसमें द ग्लाइकोजन इज एक्यूमुलेटेड। सो दिस इज डायग्राम, ये जो आपकी बॉक्स है लिपिन कॉर्ड में, ये वाला साइड वाला, सो अफेक्ट्स लिवर एंड किडनी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, आगे उसने लिखा स्वेयर, फैटी लिवर, हेपेटोमेगली, रीनोमेगली, किडनी में भी होगा, प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज भी होगी, ये बताना भूल गया क्योंकि किडनीज भी इफेक्ट हो रही हैं। सो देयर विल बी ग्रोथ रिटार्डेशन, देयर विल बी डिलेड पुबर्टी, देयर विल बी लैक्टिक एसिडेमिया, देयर विल बी हाइपरलिपिडेमिया, देयर विल बी हाइपरयूरिसीमिया, देयर विल बी नॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज होता है, उसकी दो होती है ना हमारे पास डोमेन्स। तो फर्स्ट डोमेन में ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, और सेकंड में होती है ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, और डी में होती है ग्लाइकोजन 6 ट्रांसलोकेज। होती दोनों एक ही हैं, लेकिन ट्रांसलोकेज का काम ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स में, सो इट रिजल्ट इन न्यूट्रोपिनिया। व्हाई इट विल रिजल्ट एनी इफेक्ट ऑन पैंक्रियास? इज ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन अकरिंग इन पैंक्रियास or a gluconeogenesis occurring in pancreas? No, there will be no effect on pancreas. They are only the suppliers of hormones. They are only the supply of hormones. Yes, they will start secreting more hormones because उनके पास रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस नहीं जा रहा कि ग्लूकोज है, उनको तो यही मिल रहा है ना कि ग्लूकोज बॉडी में कम होगी, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते रहेंगे, बस यही होगा कि हाइपर फंक्शनिंग हो जाएगी पैंक्रियास की, और कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो हमारे पास इसका टाइप 1 बी जो होती है न्यूट्रोफिल्स में ज्यादा, बी ट्रांसलोकेज, उसमें तो न्यूट्रोपिनिया, सो टाइप 1 बी जो होती है, दोनों को वॉन जीरिक डिजीज ही कहते हैं। न्यूट्रोपिनिया रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, न्यूट्रोपिनिया की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज और रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनकुक्ड स्टार्च। तो ग्लूकोज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया को रिवेल करें। So this von Jelic disease, you again see von Jelic disease, the belly, you can see the belly of the baby and the delayed growth, you can see the dentations, ये देखें इसके जो teeth हैं, इसके जो दांत हैं, सही ग्रो नहीं कर रहे, छोटे छोटे से हैं, बिकॉज सेल्स को, बॉडी के सेल्स को हमारे पास नहीं मिली। और यू कैन सी हिज टमी very large because of severe hepatomegaly, because of severe hepatomegaly। ठीक हो गया। क्या क्वेश्चन अभी लिखा है, मुझे शो नहीं हुआ। अच्छा, तो दे विल बी severe hepatomegaly। So coming to a type 2, I already told you कि हमारे पास जो है लाइसोसोम के अंदर हो रही थी ना टाइप 2। हाइपरयूरिसीमिया रिपीट कर दे। हाइपरयूरिसीमिया यूं होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्युमुलेट हो रहा है, इट विल एंटर इनटू द एचएमपी शंट पाथवे,
HMP शंट पाथवे में जाके रेबुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा, रेबुलोज 5 फॉस्फेट एरो डाल के लिखें, रेबुलोज 5 फॉस्फेट, रेबुलोज 5 फॉस्फेट एंटर इनटू द प्यूरिन सिंथेसिस, प्यूरिन सेंसिस ज्यादा हो जाएगी, देन इट विल एंटर इनटू द प्यूरिन डिग्रेडेशन, और प्यूरिन डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, सो इट विल रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया। सो ग्लूको जो हम आगे चलते हैं, टाइप 2 जो होती है दैट इज पॉम्पी डिजीज। पॉम्पी जो होती है, मुझे आपको बताया था लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो रही होती है, एसिड माल्टेज या अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होता है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो, हमने पढ़ा था द पाथवेज अननोन, सो उसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो you remember all organs are affected but हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फैक्टर। जब ये हुआ ना, ये जब ये मैं पढ़ा था जब आई वाज इन 2017 व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, तो जब टेस्ट था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा ये हम पढ़ते हैं, मैंने कहा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं। मैंने उसको कहा कि पॉम्पी डिजीज, क्वेश्चन में लिखा हूँ ना कार्डियोमेगली कार्डियोमेगली कार्डियो, मैं इसको इतनी दफा काम ग्राउंड में चक्कर लगाए थे, साथ साथ रनिंग करते हैं, रिपीटेड अगेन एंड अगेन के कार्डियोमेगली लिखा हो, कार्डियोमेगली लिखा हो, क्वेश्चन में कार्डियोमेगली लिखा हो और ग्लाइकोजन का जिक्र हो, चुप करके पॉम्पी डिजीज डायग्नोसिस में लगा देना। कार्डियोमेगली लिखा हो, साथ पॉम्पी डिजीज लिखा हो, सॉरी साथ ग्लाइकोजन का कोई लिखा होगा, ग्लाइकोजन एक्युमुलेट हो रही है नॉर्मल स्ट्रक्चर में या कुछ भी लिखा हो, साथ कार्डियोमेगली लिखा हो और बच्चा 2 साल से कम हो, जो एज बताई गई हो ना पेशेंट की वो 2 साल से कम हो, साथ कार्डियोमेगली लिखा हो और ग्लाइकोजन की कोई जिक्र किया हो, चुप करके पॉम्पी लगा देना। आई रिपीटेड इट अगेन एंड अगेन, कार्डियोमेगली कार्डियोमेगली। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर जो था ना 5 का पार्ट ये था, 1-year-old child presented to the emergency department or with failure to thrive, having the abnormality of ECG on the chest CT scan. There is a massive cardiomegaly, or the patient died before the age of 2 years, or this और उसने साल लिखा दे ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा पेपर निकल गया, मैंने उसको कहा कि आ गया ना, आ गया ना, मैंने उसको कहा कि आ गया ना कॉम्पिटिटिव, आ गया ना, है कहते पॉम्पी डिजीज था, मैं तो उसका कोरी लगा गया हूँ, मैंने कहा दौर फटे तो इस तरह की चीजें होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट में मेरा टॉप भी हुआ था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो देयर आर पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ एवरी डिजीज। इन पॉम्पी डिजीज देयर इज कार्डियोमेगली, कार्डियोमेगली और किसी में नहीं हो रही ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में। तब कार्डियोमेगली का जिक्र कर रहे हैं, हार्ट का जिक्र कर रहे हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर का कर रहे हैं, और एज बता रहे हैं 2 से, क्योंकि ये नॉर्मल इनका पाथवे अननोन होता है ना लाइसोसोमल डिग्रेडेशन का, और सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, लिवर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और 2 साल से पहले इन लोगों के बच्चों की डेथ हो जाती है, 2 साल से पहले इन बच्चों की डेथ हो जाती है। अब जो अगली डिजीज है कोरी डिजीज, इसमें जो हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम था अमाइलो अल्फा 1 से ग्लूकोसाइडेज, जिसके 2 पार्ट्स थे, तो अल्फा 1,4,1,4 भी था, तो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है ये डेफिशिएंट होता है, इसको कहते हैं कोरी डिजीज। ये मसल और लिवर को अफेक्ट करती है, इसमें इंक्रीज्ड अमाउंट होता है, क्योंकि इसने डी ब्रांचिंग करनी होती है, तो शॉर्टर आउटर ब्रांचेस एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एक्युमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। सो टाइप 1 की तरह ही होता है, लेकिन माइल्डर कोर्स होता है। क्यों माइल्डर कोर्स होता है? बिकॉज ग्लूकोनियोजेनेसिस इज कंटिन्यूअली अकरिंग, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती जा रही है, तो माइल्ड इसमें कीटोसिस होगा, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लेकिन वेरी माइल्ड होगा, मैसिव इनलार्जमेंट भी लिवर की नहीं होगी, माइल्डर होगी। तो इसने लिखा माइल्डर। क्यों लिखा माइल्डर? बिकॉज ग्लूकोनियोजेनेसिस। को आपसे पूछे क्यों लिखा है सर? बिकॉज ग्लूकोजेनेसिस अकरिंग हो रही है, ग्लूकोज मेरी बॉडी को। सो टाइप 4 इसे आपने ऐसी मानिए रटे, टाइप 4 इज एंडरसन डिजीज। सो इट इज द ओनली डिजीज, वैसे मैं ना ये सोच रहा था ये आपको दूंगा उसमें टेस्ट में, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो एंडरसन डिजीज है ना, इट ओनली अफेक्ट्स इट सारी डिजीज में ये वाहिद है जो स्प्लीन को अफेक्ट करती है, और इसमें भी डेथ हो जाती है 2 साल से पहले बच्चे की। इट रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव सिरोसिस ऑफ लिवर। Cirrhosis of liver before 2 years of age, most common cause of cirrhosis of liver in child presented below 2 years of age. This is Anderson disease. I repeat again. Cirrhosis, the most common cause of cirrhosis of liver in child presented to emergency or OPD or medicine or जहाँ भी presented to PEDS department, medical department before 2 years of age. This is the glycogen storage disease type 4 that is called as Anderson disease. In Lippincott जो आपका जो diseases लिखी है ना, उसके नीचे फिगर की जो नीचे डिटेल नहीं लिखी होती, उसके अंदर उसने छुपा के लिखी हुई है, लिखा होता है ना फिगर 11.8, उसके नीचे डिटेल, वहां पे एंडरसन डिजीज उसने छुपा के लिखी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल आई थी एंडरसन, तो गलत की थी। तो टाइप 5 इज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट। टाइप 1 और 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप 5 में होता है कि मैकार्डल, एम फॉर मैकार्डल, एम फॉर मसल, मसल का जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है, एम फॉर मैकार्डल, एम फॉर मसल, मसल का जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है वो डेफिशिएंट होता है, मसल का जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है वो डेफिशिएंट होता है।
तो अब मसल का ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंट होगा तो लिवर विल बी नॉर्मल, लिवर विल बी normal, there will be mild hypoglycemia, there will be mild hypoglycemia, but there as gluconeogenesis is not occurring in muscle, so there will be no hypoglycemia. Sorry, there will be no hypoglycemia. The blood glucose level will be normal, there will be no hypoglycemia because muscles are not maintaining the blood glucose level and liver is not affected. In myocardial, only the muscle glycogen phosphorylase is defective, as a result of which normal structured glycogen is accumulated because glycogen is continuously synthesizing and it is not degrading. Synthesis होती रहेगी लेकिन डिग्रेडेशन नहीं होगी, तो नॉर्मल अमाउंट जो है ना वो ग्लाइकोजन की accumulate होगी. इसकी स्क्रीनशॉट ले लें इस टेबल का. सो इसमें क्या होगा, पेनफुल क्रैम्प्स होंगे, दर्द हो रही है बड़ी मुझे, मसल्स में दर्द हो रही है, देयर विल बी द पेनफुल क्रैम्प्स. आई विल शो द डायग्राम ऑफ द क्रैम्प्स, अभी आगे आएगी. सो देयर विल बी द पेनफुल क्रैम्प्स क्योंकि मसल को एनर्जी नहीं मिल रही. सो देयर विल बी आल्सो अच्छा उसके ब्लड में लैक्टेट नहीं आएगा, मसल से एनारोबिक होती है तो लैक्टेट आता है, यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही और ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन नहीं हो रही. सो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी नॉर्मल, देयर विल बी नो मेंटल रिटार्डेशन. So remember, there will be no mental retardation, there will be no hypoglycemia, no ketosis, no lipidemia, no fatty liver, only the muscle pain, muscle cramps, especially during strenuous exercise. So the number 6 is same as that of 5, but it is the liver phosphorylase deficient. It is the liver. अब liver में phosphorylase deficient होगा तो क्या होगा, अब liver effect होगा, लिवर इफेक्ट होगा तो क्या होगा, दे विल बी हाइपोग्लाइसेमिया बट इट इज माइल्ड, इट इज नॉट सेवियर बिकॉज ग्लूकोनियोजेनेसिस इज कंटिन्यूअसली अकरिंग. फॉस्फोराइलेज तो नहीं एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस का. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरे जो पूरी बायोकेमिस्ट्री में ना सेकंड ईयर की मुझे जो सबसे मजे की चीज लगती है ना वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज लगती हैं. और भी आगे काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं फैट्स में और उसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है वो 3 चीजें लगती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, एक हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस और एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. सो टाइप 6 is called as Hurst disease in which the liver phosphorylase enzyme is deficient. I repeat again, these are 8 clinicals. टाइप 7 में क्या होता है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो होता है ना मसल का वो डेफिशिएंट होता है. और टाइप 8 में क्या होता है, फोस्फोराइलेज काइनेज. टाइप 8 में क्या होता है, फोस्फोराइलेज काइनेज जो है वो डेफिशिएंट होता है. फोस्फोराइलेज काइनेज क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज कर रहा था. सो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो होता है मैंने पहले बताया, इसको एएमपी स्टिमुलेट करता है. जब फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज नहीं काम करेगा ग्लाइकोलिसिस का, तो ग्लाइकोलिसिस तो रुकेगी, पीछे ग्लाइकोजन की सेंसिस भी रुक जाएगी, डिग्रेडेशन भी रुक जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है बॉडी में इनफ ग्लूकोज पड़ी हुई है. अब इसको समझने की कोशिश करें, एक स्टेप रुकेगा तो पिछला वाला भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब है कि ग्लूकोज आगे नहीं टूट रही तो हम उसको और क्यों तोड़ें तो पीछे ग्लाइकोजन एक्युमुलेट होनी शुरू हो जाएगी. दिस इज द टाइप 7 disease. So there is a special name of type 7 disease, यहाँ नहीं लिखी हुई, that is I think Tori disease. Yes, that is Tori disease, TAURI. The type 7 disease is called as Tori disease. तो अब आगे चलते हैं, बस खत्म करते हैं इसको. So this is type 1. I will showing you diagrams. So this is type 2, Pompe disease. You see how beautiful the cardiac muscles. You see, आपने ड्रा किए होंगे कार्डिक मसल्स, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं. आपने फर्स्ट में कार्डिक मसल की डायग्राम बनाई थी ना. सो दिस इज Pompe disease. There is lysosomal alpha 1 acid glucosidase deficiency or acid maltase deficiency. So normal blood glucose level, there is massive cardiomegaly. There is massive cardiomegaly. Infertile form, early death typical from heart failure. Second last point, early death typical from heart failure. So what is the treatment? Treatment is enzyme replacement therapy. Treatment is enzyme replacement therapy. So in the type 2 Pompe disease, there is cardiomegaly and there is death, and all organs are affected, but primarily heart, liver and muscles. All organs are affected, but primarily heart, liver and muscles. So इसको फेंक देते हैं. अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूँ. कार्डियोमेगली की कॉज ये है कि जो हमारे पास है क्या कहते हैं उसे, ग्लाइकोजन एक्युमुलेट हो रहा है हार्ट के अंदर. क्यों हो रहा है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द पाथवे इज अननोन. द पाथवे इज अननोन. अच्छा ठीक है, तो मायोकार्डियल है. यू कैन सी द मैन क्रैम्पिंग. ओह, देयर इज पेन इन हिज लेग. This is myocardial. M for muscle, M for muscle, M for myocardial. So it is type 5 disease. और इसके A को रोमन वर्ड में उल्टा कर दें, इस A के A को, तो it will become, इसके A को कैपिटल लिखते हैं
इसके एक उल्टा कर देना टाइप, आप देखेंगे बुक में भी इसके ए को कैपिटल लिखा होगा, इट इज अ स्पेसिफिक रीजन। इसके एक उल्टा कर दें तो टाइप 5 बन जाता है, और एम से मसल तो मैकार्डल। सो यू कैन सी हियर द स्केलेटल मसल्स, a large skeletal muscle with starting accumulating glycogen, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो गया इनके अंदर। यू कैन सी द हेयर बिटवीन द मसल्स टू, ये जो वाइटिश जो एम्प्टी स्पेस है इसमें ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हुआ है, बिकॉज ग्लाइकोजन डज नॉट टेक स्टेन। सो दिस इज मैकार्डल टाइप 5 ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी इन द मसल, एंड टाइप 6 इज हर्स। सो इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट, मायोग्लोबिन यूरिया होगा बिकॉज ऑफ मसल क्रैम्प्स, मायोग्लोबिन टूट के बाहर आना शुरू हो जाएगी, और वीकनेस होगी स्ट्रेनस एक्सरसाइज के, लिवर नॉर्मल होगा, स्केलेटल मसल्स अफेक्ट होंगे। तो ये लिपिन कॉर्ड में है। अच्छा, अच्छा फिर अच्छा खत्म हो गई है, खत्म होगी। बाकी डिजीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी डिजीज कहाँ गई। हाँ, एक एक और इम्पोर्टेंट थी बाकी एक हमारे पास टाइप 3 इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 कोरी डिजीज। कोरी डिजीज में क्या होता है, हमने पढ़ा है ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है ना वो डेफिशिएंट होता है, तो इसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है लेकिन इतना नहीं होता, और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट होता है। और एंडरसन पढ़ ली हमने, बाकी वो आप लोग टेबल से ही करेंगे। सो नाउ असाइनमेंट, सो इट इज an interesting question. Type what is what is type 0 glycogen storage disease, what are its features? ये मैंने जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज थी ना ये गायब कर दी थी जानबूझ के। टाइप 1 2 3 4 5 7 8 बताइए। तो आपका असाइनमेंट है व्हाट इज टाइप 0 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, व्हाट आर इट्स फीचर्स, हाउ विल यू डायग्नोज पॉम्पी डिजीज, अभी मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। और ये भी बता दिया बायोकेमिकल बेसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, लैक्टिक एसिडीमिया, स्वेयर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इन इन यहाँ पे इज नहीं है, इट इज इन टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज। चलें जी, यहाँ पे इन ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कॉजिंग लिवर सिरोसिस इन अर्ली चाइल्डहुड, glycogen storage disease causing liver cirrhosis in early childhood. Enlist glycogen storage diseases in which abnormal structured glycogen is accumulated, ये normal structured glycogen accumulated by blood sugar levels are normal in Pompe disease. So this is your assignment. So we have completed our most interesting topic, that is glycogen storage disease. जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ाए फिद दारैन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी नेकियां अता करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।